Hello students, I am here with my next video for class 11. In the earlier videos we have done quantity, types of quantities, dependent variable, independent variable, then we have done equation, we have done binomial theorem, how it is to be used, when it is to be used, what are the different cases for binomial theorem, that's all we have done. Now we will move on to the next topic. This is logarithm. It's logarithm. In short, it is written as log. In short, it is written as log. It is basically of two types. One is log with base e, exponent. This is called exponential log. And second one is log with base 10. Now, what is the difference between the two? This you will study in your maths class. Here I will just tell you how it is used in physics, and frequently the log which will be used in physics will be log having base 10. So logarithm. Now question comes, what is this logarithm and why it is used? So first of all, logarithm, it is a mean of making calculations easy. जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस होती हैं, ये एक ऐसा मीन है जिससे हम कैलकुलेशंस को क्या करते हैं, इजी बनाते हैं. सो लॉगरिथम, दिस वाज अर्लियर इन क्लास 8th, बट नाउ इट हैज बीन डिलीटेड, बट यू हैव टू स्टडी इट हियर बिकॉज इट इज यूज्ड इन फिजिक्स. Logarithm, log, it is the mean of making calculations easy for us. I have told you it is of two types. One is log, logarithm in short is written as log. It is of two types. One is log with base e and second is log with base 10. In physics we will frequently deal with log with base 10. कन्वर्जन सिखा देता हूं मैं तुम्हें कि अगर कभी log e दिया भी गया हो, even if log e is given to you, for example log e x तुम्हें दिया गया है और तुम log with base e को log with base 10 में चेंज करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो. This is how you can convert log with base e into log with base 10. अगर तुम्हें कुछ भी दिया गया है log e x की जगह कुछ भी हो सकता है, I will give you the examples, और अगर तुम्हें उसे log 10 में चेंज करना है तो 2.303 से उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज अ फिक्स्ड कैलकुलेटेड वैल्यू. अब इसकी तीन आइडेंटिटीज हैं जो फिजिक्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होंगी. सो वी हैव थ्री आइडेंटिटीज which will be used. First is log of m multiplied by n. When I am not writing anything, it is log 10. So log m multiplied by log n को हमेशा expand करके लिखा जाता है log m plus log n. log m multiplied by n को क्या लिखा जाता है, log m plus log n, और अगर कहीं पे log m plus log n है, you can write the vice versa, log m multiplied by n. Second identity is log m divided by n. Now this is written as log m minus log n and vice versa. If somewhere you get it log m minus log n, you can write it in the form log m divided by n. This was the second identity. Third identity is log m की power n. Log m raised to power n. Now you can write it here n log n. तो इसे n log m भी लिख सकते हो. ये तीन आइडेंटिटीज हैं. एग्जाम्पल के साथ अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है log 6, तो तुम log 6 को log 3 into 2 भी लिख सकते हो. 3 2 6, और फिर इसे क्या लिख सकते हो, log 3 plus log 2. ये एग्जाम्पल 1, फर्स्ट आइडेंटिटी. सेकेंड आइडेंटिटी की एग्जाम्पल देखो,
इट्स लॉग, सपोज आता है तुम्हारे पास 8 divided by 4, so you can write it log 8 minus log 4, you can write it like this. और अगर तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल है, अभी आई एम नॉट टेलिंग यू दैट हाउ टू सॉल्व दिस, जस्ट टू राइट. अगर आता है 2 की पावर 3, यू कैन राइट इट 3 log 2, तो इसे इस तरह से लिख सकते हो. ये है हमारी डिफरेंट वैल्यूज. व्हाट इज लॉग? लॉग इज अ मीन ऑफ मेकिंग कैलकुलेशंस इजियर फॉर अस. इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, लॉग विद बेस e एक्सपोनेंशियल लॉग and log with base 10. To convert log e into log 10, you need to multiply the term by 2.303. There are 3 frequent identities which will be used: log m into n, log m plus log n, log m divided by n, log m minus log n, log m की पावर n, it's n log n. मैंने एग्जाम्पल देके भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है. ये वैल्यूज हमें कहां से मिलेंगी, दैट आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस. Now how to find the values of now log? This you have to remember, few values you have to remember, because in order to find the values of log, we need to have a log table with us. That is generally given in your maths book at the last. But in physics, we will remember certain logs which are frequently used. Now, first is log 1. Log 1 हमेशा 0 होता है. Now your question may be, ये कैसे मुझे पता लगा? देखो, log 1 जो है, तुमने देखना है कि 10 की पावर क्या हो कि आंसर 1 आए. दिस इज लॉग विद बेस 10 1. तो तुमने देखना है कि 10 की पावर क्या लगाएं ताकि आंसर 1 आए. सो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज व्हाट 1. तो अगर 10 की पावर 0 रखता हूं तो 1 आएगा. ये 0 हमारा क्या होगा, आंसर होगा. ये है फर्स्ट जो बहुत ज्यादा यूज होगा. देन log base 10 2. अब ये तो आसान था, मुझे पता था कि 10 की पावर 0 होगा तो 1, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. सो 10 की पावर क्या लगाएं कि 2 आए, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा. ये वैल्यू होती है 0.3010. अदरवाइज ये लॉग टेबल में हम देख सकते हैं. सिंस लॉग टेबल हियर इज नॉट अवेलेबल विद मी, तो ये मैथ्स की क्लास में तुम्हें सिखाया जाएगा. और अगर वहाँ ना होगा तो देन आई विल हैव द बुक, आई विल मेक यू learn how to look at that log table. तब तक याद रखिए log with base 10 2 होता है 0.3010. इसी तरह log with base 10 3, तुमने देखना है कि 10 की पावर क्या हो आंसर 3 आए, तो ये वैल्यू होती है 0.4771. दिस इज द वैल्यू फॉर log 3. फोर्थ log 4. देखो इसे थोड़ा सा हम निकाल सकते हैं. कैसे? देखो, क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 2 भी क्या होता है 4. और अगर मैं यहां पर ये आइडेंटिटी लगाऊं यूजिंग log m मल्टीप्लाइड बाई log n, तो मैंने बताया तुम्हें ये कितना होता है, ये होता है log m प्लस log n, isn't it? तो m की जगह हमारे पास क्या है 2, n की जगह हमारे पास क्या है 2. तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं log 10 2 प्लस log 10 2, और log 2 की वैल्यू तुम जानते हो 0.3010. तो 3010 प्लस 3010, ये कितना हो गया 0.6020. कैलकुलेशन चेक कर लेना, यही आएगा. So it means that log 4 कितना होता है 0.6020. ये तुम लर्न भी कर सकते हो और मैंने निकालना भी सिखा दिया है. फिर इसी तरह अगर कहीं आ जाए log 5,
ये होता है 0.6939। ये वैल्यू चेक कर लेना, इट्स 0.36939। आई एम नॉट हैविंग द बुक, सो इट्स I think 6989 is the value for log. If you have scientific calculator, you can also look the value from there, but scientific calculator is not allowed to. So log 5 होता है 0.6989। इसी तरह ये होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें, log 6 कैसे निकालोगे? 6 को लिख लो 3 into 2 और आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है? फिर 7 log 10 कितना होता है? ये होगा बच्चों 1। 10 की पावर क्या होगी? आंसर 10 आए 1। फिर log 100 कितना होता है? ये होता है बच्चों 2। 10 की पावर क्या हो? 100 आए 2। इसी तरह log 10,000, ये बहुत बार यूज होंगे तीनों, this one and this one, कितना होगा? 3। 10 की पावर क्या हो? ये आंसर क्या है? 3, ठीक है? इसी तरह कुछ जनरल वैल्यूज हैं जो मैं सिखाता हूँ। आई एम नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड सिस्टम हियर, सो दैट इज व्हाई इट इज सॉल्विंग। नेक्स्ट इज 10। सपोज log 2 4 आ जाए, log विद बेस 2 4, तो 2 की पावर क्या होगी? 4 आए 2, ये आंसर होगा 2। इसी तरह अगर आ जाए log 9 और नीचे लिखा जाए 3, तो 3 की पावर को क्या रखा जाए कि 9 आए? आंसर क्या होगा? 2। इसी तरह चेक करो जरा वीडियो को पॉज करके, अगर मैं ये लिखूं तो आंसर क्या होगा? log बेस 5 125, 5 की पावर क्या रखें? 125 आए 3। 5 into 5 into 5, 5 into 5 25, 25 into 5 is what? 125, so answer will be 5, ठीक है? ये कुछ वैल्यूज हैं जो तुम्हें याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6 ये जनरली पूछी जाएंगी। इस तरह का कोई 1 मार्क क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है, तो तुमने याद रखना है कि इसकी पावर क्या हो ताकि आंसर ये आए, उससे तुम्हें आंसर मिलो। और सॉल्व करते वक्त आइडेंटिटीज का ध्यान रखो। जैसे सपोज log 12 आ जाए तो वो हो जाएगा log 4 into 3 और आइडेंटिटी लगा लो, ठीक है? You can pause the video, go through it. If you are having certain doubts, we will clear that in the response. Note down. Now let's do a question that how log makes our calculations easier. Look, suppose this is given to you that y is equal to 8 raised to power 27. It means that we have to multiply 8 27 times to get the answer. Now this is a very lengthy process, and this is I am giving just a simple example to you. This concept is very frequently used in astronomy. वहाँ जब इक्वेशंस बनाई जाती हैं कि स्पेस शटल कितना टाइम लेगी, कैसे ट्रेवल करेगी, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं, तो आ जाएगा log y इज इक्वल टू log 8 की पावर 27। क्या करें? 8 की पावर दी है तो ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ यूजिंग log n की पावर n। कैसे लिखते हैं? n log n, isn't it? So I will write log y is equal to बन गया 27 log 8। अब मुझे log 8 की वैल्यू भी नहीं पता है, so मैं क्या करता हूँ? There are so many ways. You can write 2 into 4, वो भी 8 होता है, और फिर log m multiplied by n वाली आइडेंटिटी लगा दो, और you can write because 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 2 to the 4, 4 to the 8। यहाँ दोबारा यही आइडेंटिटी लगाई, log y is, ये आगे आ जाएगा 3 into 27 log 2, 27 3 are 81,
और log 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, अभी बताई थी 0.3010। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया log y इज इक्वल टू 81 इंटू 0.3010। ये मल्टीप्लाई करके देखना, 23.39 अप्रोक्सीमेटली इतना तक आएगा। अब log को इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ, और log जब भी इक्वल टू की उस तरफ जाता है ये एंटी लॉग बन जाता है। क्या बन जाता है, एंटी लॉग, इसका 24.39। ये एंटी लॉग भी एक टेबुलर फॉर्म में होता है, जिसे देखना तुम्हें सिखाया जाएगा, बट फॉर दैट वी नीड टू हैव दैट लॉग एंड एंटी लॉग टेबल, दैट इज नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट। तो ये मैं सिखाऊंगा तुम्हें, और द मैथमेटिक्स क्लास में तुम ये पूछ सकते हो कि एंटी लॉग कैसे देखना है। सिर्फ इतना सा काम होगा, 24 की वैल्यू 3 के नीचे देखनी है और उसमें 9 ऐड कर देना है, दैट विल बी योर आंसर। इजी है, लेकिन अभी हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। सो तरीका देख लो, व्हेन द क्लासेस विल रिज्यूम आई विल लेट यू नो हाउ टू लुक एट दिस टेबल। पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए, देन वी विल टेक वन अनदर एग्जाम्पल। मैं अभी लिख के जाता हूँ एग्जाम्पल, होप तुम ट्राई करोगे। एग्जाम्पल इज, लेट मी रिमेंबर इट। सपोज तुम्हें क्वेश्चन दिया जाता है, सॉल्व करो, सॉल्व log of रूट 18। कोशिश करो जरा इसे सॉल्व करने की। So our question was solve log root 18, log of root 18 की वैल्यू क्या है। अब log क्या स्क्वायर रूट को हटा के मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो यूजिंग log m की पावर n कितना होता है, n log m। तो क्या इसे लिख सकता हूँ 1/2 log 18। बच्चों 18 को क्या ब्रेक कर सकता हूँ, log of 9 multiplied by 2, isn't it? It's 9 2s are 18। फिर क्या किया जाए, 1/2 कॉमन, m multiplied by n लगा लेता हूँ, यूजिंग log m into n कितना होता है, log m plus log n। Since these concepts are very new to you, so you have to watch this video 2 or 3 times to make the concepts more clear to you. Okay, you have to watch these videos because, and let me tell you one thing, that don't think that physics is very difficult। ये जो starting है, ये जो starting में मैं करवा रहा हूँ, this will remove all your difficulties which you will face in your physics in higher classes। तो ये हम शुरू में ही ऐसा कर रहे हैं, otherwise physics is very easy। ठीक है, घबराना नहीं है। कोई भी नई चीज़ जो तुमने सीखनी है, when you were in your first class you learned how to write A, so that was a difficult thing। now you find everything very easy। Similar to this, इन पे थोड़ा सा फोकस करो, रेस्ट ऑफ द फिजिक्स यू विल फाइंड वेरी इजी। फिजिक्स 11th है, क्योंकि ये तुमने पहले कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा तुम्हें ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इनिशियली ये 10-15 दिन जो हैं अच्छी तरह फोकस करो, वीडियो को बार बार 3-4 बार देखो। हैड वी बीन इन द क्लास तो तुम मेरे पास डाउट लेके आ सकते थे, लेकिन अभी भी हमारे पास वॉट एवर मीडियम वी हैव वी विल कम्युनिकेट। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वीडियोस को बार बार देखो। जो डाउट्स हैं यू कैन कॉल मी, यू हैव माय नंबर, यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द रिस्पांस ग्रुप। सो अब तो मैं इसे लिख सकता हूँ log 9 प्लस log 2 लिख सकता हूँ, ये आइडेंटिटी लगाए। अब log 9 की वैल्यू भी नहीं है तो क्या लिखें इसे, log 3 का स्क्वायर लिखें, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, प्लस log 2। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं इसे सॉल्व। तो
तो ये आ जाएगा 1/2 log, क्या किया जाए यहाँ, log 3 का स्क्वायर, I can write it 2 log 3, isn't it? ये आगे आ गया, यही आइडेंटिटी लगी, प्लस log 2। अब ये वैल्यूज मैंने तुम्हें कहा था याद रखनी है, स्टार्टिंग वाली, log 1 0 होता है, log 2 0.3010, log 3.4771, log 10 1, log 100 2, log 1000 3। अगर हम यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यूज डालेंगे 1/2, 2 into log 3 0.4771, log 2 0.3010, इसे सॉल्व करो, अप्रॉक्सीमेटली log रूट 18 आएगा 0.627। कैलकुलेशंस चेक कर लेना, थोड़ा गलत हो सकता है कहीं पे, only this calculation you have to check, rest everything is correct. So this is how log is used in the physics mathematical calculations. Pause the video, note down, we will move further. Now, your next topic is series. This is also a new topic. For those who will opt for mathematics, they will have a separate chapter based on this. But those who are opting for medical, so they generally face certain problems because they have not studied this. And also in maths, you might study it later on, in the later half of the year. And in physics, it might be used very early. So मैं थोड़ा सा introduction दे रहा हूँ. What is the series is? Series is generally classified into two types. Series दो प्रकार की हम लेते हैं. One is AP and second one is GP. You might have heard the name in class 10th, I think. AP stands for arithmetic progression and GP stands for geometric progression. सीरीज हम दो तरह की लेते हैं, AP या GP. AP ये भी हमारी कैलकुलेशंस को इजी बनाती है, मैथमेटिकल टूल है इन फिजिक्स टू मेक कैलकुलेशंस इजियर. AP arithmetic progression and GP geometric progression. First we will take AP. AP क्या है? देखिए, suppose तुम्हें कोई सीरीज मैं लिखता हूँ, for example, before giving you the definition, let me make you understand what AP is and how you will evaluate that given series is AP or not. Suppose ये example है 1, 2, 3, 4, so on up to 100. ये एक सीरीज हमें दी जाती है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये AP है? बच्चों, if the difference of preceding terms always remains the same, means that अगर मैं second term में से first को minus करूँ, third में से second को करूँ, fourth में से third को करूँ, इसी तरह 100th term में से 99th term को minus करूँ, subtract करूँ, और अगर in all the cases हमारा result same आता है, it means that that series is AP. Series का AP होने के लिए the primarily condition is that difference of the preceding terms should always be what? Same. Second से first, third से second, fourth से third, so on, 10th से 9, 20th से 19, जितनी भी terms हैं, difference of the preceding terms should always be what? Same. This is the condition for a series to be AP. मेरी बात समझ में आई? For a series to be AP, difference of preceding terms should be same. Difference of preceding terms क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए. यहाँ पर here A is called first term. फर्स्ट टर्म को हमेशा A द्वारा डिनोट किया जाता है, सीरीज की कोई भी फर्स्ट टर्म हो उसे A द्वारा डिनोट किया जाता है. एंड D रिप्रेजेंट्स कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस. वो जो टर्म्स को माइनस करके डिफरेंस आ रहा है उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? D से. अब जैसे ये तो सीरीज सिंपल है,
that 1 2 3 so on. अगर तुमसे कहा जाता what will be the 61st term of the series, उसके लिए भी एक जर्नल एक्सप्रेशन. अगर सीरीज AP है, the series which is given to you is AP, how you will find that is AP? Difference of the preceding terms should be same. Then if he says that find 1000th term of the expression, तो तुम्हें 1000 तक लिखने की जरूरत नहीं है सीरीज को. You have a journal formula for that. वो journal expression क्या है? Journal expression is a plus n minus 1 into d. A will be the first term of the expression, d will be the common difference, n वो number of terms जो तुम find करना चाहते हो. जैसे for example इसकी तुम 61st टर्म को फाइंड करना चाहते थे. ये सिंपल सीरीज है, मुझे पता है 61st टर्म क्या होगी, 61 ही होगी, लेकिन फिर भी चेक करते हैं क्या आएगा. a की जगह 1 प्लस कौन सी फाइंड करनी है, 61 माइनस 1. यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1. तो ये आया 1 प्लस 60 माइनस 1 हो गया 60 इंटू 1, कितना आया 61. तो इस सीरीज की जो 61st टर्म होगी वो क्या होगी, 61 होगी. ये जर्नल एक्सप्रेशन है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए एपी के लिए. इसी तरह सपोज तुमसे पूछा जाता फाइंड सम टू 5th टर्म ऑफ सीरीज. मतलब 1 2 3 4 5th टर्म 5 होगी. वो कहता है इनका सम कितना होगा. ये तो चलो मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ बिकॉज ये ज़्यादा लेंथी नहीं है. तो कितना होगा, 2 + 1 3 3 3 6 4 10 15 आंसर आना चाहिए. लेकिन अगर वो ऐसे ही तुम्हें कह दे कि फाइंड सम ऑफ 625th टर्म ऑफ द सीरीज, तो फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम टू n टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला. फॉर्मूला इज n/2 ब्रैकेट twice of a plus n minus 1 into b. ये भी तुम्हें CTM करना है, कॉन्टैक्ट टू मेमोरी रखना है. फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज. कौन सी सीरीज, AP. ये AP के लिए फॉर्मूला है. जरा चेक करते हैं 5th टर्म के लिए आता है हमारा आंसर. चेक करते हैं. He says 5th टर्म तक हमारा आंसर क्या होगा. लेट्स डू इट. हम जरा अगर वैल्यूज डालें तो ये आएगा 5/2 2 into 1 प्लस 5 minus 1 into 1. यही आएगा. 5th टर्म का निकालना है. 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 5. फर्स्ट टर्म 1 है, 2 into 1 कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 minus 1 1 1 कॉमन डिफरेंस. तो जरा चेक करते हैं. ये आया 5/2. होप द बोर्ड इज विजिबल. 5/2 2 5 minus 1 4 4 into 1 4. तो बच्चों ये आया 5 into 6/2 3. कितना आया 15. तो ये जनरल फॉर्मूला यूज करते हुए तुम सम टू n टर्म्स फाइंड कर सकते हो. कब, जब कोई भी सीरीज क्या दी गई है, AP दी गई. If a series which is given to you is AP, you can find sum to n terms. I will give you a question for homework. यही सीरीज है. Find sum to 61 terms. 61 terms का सम क्या होगा. जनरल एक्सप्रेशन के लिए ये, सम निकालने के लिए ये. पॉज कीजिए वीडियो को, रिमाइंड कीजिए, देखिए, देन वी विल मूव ऑन टू जी. Now, moving on to the next series is your GP. अब किसी भी सीरीज को हम GP कब कहेंगे? Before doing the definition, let me give you an example. Suppose ये सीरीज तुम्हें दी गई है, हमें GP लेना है, तो मैं ये सीरीज लेता हूँ. So, अब किसी भी सीरीज को GP तब कहा जाता है if
द रेशियो ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म्स इज ऑलवेज सेम। एपी के लिए क्या था, डिफरेंस, यहाँ पे क्या है, रेशियो। बाई रेशियो व्हाट आई मीन, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 18 डिवाइडेड बाई 6 3, 54 डिवाइडेड बाई 18 3, सेम आ रहा है। ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, जीपी। अ सीरीज इज सेड टू बी जीपी इफ द रेशियो ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स इज सेम। इसके लिए क्या होगा, रेशियो ऑफ preceding terms should be same। रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम थ्रू आउट, जहां तक सीरीज दी गई। अगर कहीं पे भी ये फेल होता है वो जीपी नहीं होगी, ठीक है। वहां पे जो डिफरेंस था एपी पे, मैंने उससे क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे रेशियो को कहा जाता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कहा जाता है इसे, और कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय आर। कॉमन रेशियो को किससे डिनोट किया जाता है, आर से डिनोट किया जाता है। अब जैसे ये 1 2 3 4 टर्म्स दे दी, अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मुझे कैसे पता लगेगा, यहाँ पे भी एक जर्नल एक्सप्रेशन है निकालने के लिए, जर्नल एक्सप्रेशन, और जर्नल एक्सप्रेशन है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। a अगेन इज द फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, n जो तुम फाइंड करना चाहते हो। जैसे तुमने कहा फिफ्थ टर्म, फाइंड फिफ्थ टर्म, अगर मैं कहता हूं फाइंड फिफ्थ टर्म, चलिए करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। a व्हाट इज फर्स्ट टर्म, 2 इनटू कॉमन रेशियो, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ रही है। n फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, 5 माइनस 1 क्या है, 2 इंटू 5 माइनस 1 4, 3 की पावर 4, 3 9 9 3 27 3 81, 2 इंटू 81 कितना आ गया, 162। जरा चेक करते हैं कि अगर अगली टर्म 162 हो, 162 को 54 से डिवाइड करो, देखो 3 आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम रह रही है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी इसकी, 162। ऐसे ही तुम 11th भी निकाल सकते हो, 100th भी निकाल सकते हो। तो जर्नल एक्सप्रेशन ये याद रखनी है किसके लिए, जीके। इसी तरह इसके लिए भी सम टू एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। सो सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी, अगर जीपी की सीरीज दी गई है और तुम्हें सम टू एन टर्म्स फाइंड करना है, तो फॉर्मूला सम टू एन टर्म्स इट्स ए 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है। चेक करते हैं, सम टू फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं, फाइंड सम टू फिफ्थ टर्म। सीरीज कौन सी ले रहा हूं, ये 6 प्लस 2 8, चेक कर लेते हैं जरा, 8 प्लस 18 26, 26 प्लस 54 आई थिंक 80, और ये कौन सी टर्म आई थी हमारी, फिफ्थ टर्म 80। 162 और 80 कितना होता है, 242 आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं क्या हमारा आंसर आ पा रहा है इससे। सम टू 5 टर्म्स, a व्हाट इज a, 2 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 3, सम टू 5 निकाल रहे हो तो 5 ओवर 1 माइनस 3, नाउ 2 1 माइनस 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 81 होता है, तो 81 इंटू 3 243, यस 243, 1 माइनस 243 ओवर 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2। तो ये कितना हो गया, होप द बोर्ड इज विजिबल टू यू, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 में से 243 माइनस किया तो 242 ओवर -2, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, हमारा आंसर आया 242। देखो मैच कर रहा है। So this is the formula to find n terms for sum to n terms for a GP। ये तुम्हें याद होने चाहिए जो फॉर्मूला में इंसर्कल कर। और अगर GP की सीरीज हो और सम टू इंफिनिटी पूछे, क्या पूछे, सम टू इंफिनिटी, हमें नहीं पता सीरीज कहाँ खत्म हो रही है। अगर सम टू इंफिनिटी पूछे तो फॉर्मूला हो जाता है जीपी का a ओवर 1 माइनस आर। ये 3 फॉर्मूलाज तुमने याद रखने हैं।
ये journal expression for AP. This is sum to n terms for AP. Sorry, GP. Journal expression for GP. Sum to n terms for GP और sum to infinite number of terms. ये formula. ये तीन formulas जो AP और GP में आए, AP में 2 और GP में ये 3, यही most frequently use होंगे. You can pause the video, go through it. इसे ध्यान से देखिए. जो भी doubts हैं, we will clear later on. Now, next topic is trigonometry. We will talk certain basic things about trigonometry, which you have already studied. सबसे पहले, what is an angle? Now, how you can define an angle? Pause the video and think about the answer. What is an angle? Then write your response and then check here. What is an angle basically? देखो basically angle क्या है? जैसे मैं suppose करता हूँ ये एक circle है, ये इसका center. There is an object at A. O to A बन गया तुम्हारा radius of the circle. अब ये जो object है A पर, ये कुछ समय बाद move करके A से B पे पहुंच जाता है. A से कहाँ पहुंच जाता है? B पे. अब ये जो एंगल इसने टर्न किया इन मूविंग फ्रॉम A to B, दिस इज नोन एज एंगल. ये जो थीटा है which it has turned in moving from A to B is called angle. So basically हम एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं? हम लिखते हैं it is a measure of change of direction of an object. It is a measure of change of direction of an object. Object ने कितनी अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, ये हमें कौन बताता है? एंगल. इसे डिनोट किससे किया जाता है? थीटा से. इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क. आर्क यहाँ क्या है? AB. ये आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है. बुक्स में जनरली लेंथ ऑफ आर्क को S से डिनोट करते हैं और रेडियस को R से. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल. देन अनदर थिंग, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, देन angle is 1 radian. Radian is basically unit for it. You can pause the video, यहाँ तक note down करो, then we will continue. So we were talking of angle. So formula for calculation of angle is length of arc upon radius. अगर length of arc और radius दोनों बराबर हों तो angle कितना कहा जाता है? 1 radian. Radian is the unit for angle. There is another unit for angle. Another unit for angle is degree. Another unit for angle is degree. और मैं डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री की कन्वर्जन भी तुम्हें बता देता हूँ. ये जब हम we will deal with parallax method, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट करेंगे हम इन फिजिक्स, तो वहाँ ये यूज होगा. सो 2 पाई रेडियंस हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है. ये पूरा सर्कल, यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल पाई होता है. फिर यहाँ से यहाँ तक हाफ पाई, पाई प्लस पाई हो गया 2 पाई. और पूरा एंगल टर्न, एंगल ऑन अ लाइन इज 180. एक ऊपर से 180, नीचे से 180, कितना हो गया? 360 डिग्री. तो 2 पाई रेडियंस होता है 360 डिग्री. तो यहाँ से 1 रेडियन कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 रेडियन हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई. ये हो गया 180 अपॉन पाई. सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई. और अगर यहाँ से 1 डिग्री निकालना है तो वो हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन. ये भी याद रखें. 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस. क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने. ये वैल्यूज भी तुम्हें याद रखनी है. नाउ इन एडिशन टू दिस
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आई होप तुम्हें याद होगा, वो तुम्हें लर्न करना है। साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, आई होप वो तुम्हें आता है। अगर नहीं आता है तो मैं एक सिंपल सा तरीका, फर्स्ट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। Now I'm going to rub this. So देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए साइन, कॉस, टैन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 यही वैल्यूज होती हैं, ठीक है। कैसे वैल्यूज को याद रखना, देखो मैं टेबल, अदरवाइज तो तुम्हें वैल्यूज याद होनी चाहिए, लेकिन मैं टेबल बनाना भी सिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करो 0 1 2 3 4, फिर यहाँ से 0 1 2 3 4, फिर यहाँ से 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 हो गया। साइन और कॉस में सभी टर्म्स को 4 से डिवाइड करो, 4 4 4 4 4 4 4 4 और 4। टैन वाली को रिवर्स ऑर्डर में 0 1 2 3 और 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। साइन और कॉस को एवरी टर्म इज टू बी डिवाइडेड बाय 4, टैन में रिवर्स ऑर्डर में 0 1 2 3 4 से डिवाइड, और सबका स्क्वायर रूट ले लो। देखो साइन 0 रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 4 0, साइन 30 1 बाई रूट 4 कितना होता है 1 बाई 2, ये रूट 2 बाई रूट 4 सॉल्व करना है इसे, ये तुम्हारा आएगा, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, एक करके दिखा रहा हूँ। तो रूट 2 बाई 4 था, तुम इसे लिख सकते हो रूट 2 बाई रूट 4। रूट 4 कितना होता है 2, ये आया रूट 2 बाई 2। क्या 2 को लिखा जा सकता है रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 ही होता है, ये कट गया, तो ये आएगा 1 बाई रूट 2 साइन 45 इतना ही होता है, ये रूट 3 बाई 2 साइन 90 1, कॉस 0 1, ये रूट 3 बाई 2, ये 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई 2, कॉस 90 0, tan 90 anything divided by 0 infinite, tan 60 root 3, tan 45 1, tan 30 1 by root 3, tan 0 0 divided 4 by 4 is C। क्लियर? इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर कभी वैल्यूज भूल भी जाओ तो तुम बना सकते हो, ठीक है। नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाट फॉर वैल्यूज ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ थोड़ी सी और बेसिक्स है फंक्शंस। अगर ये एक राइट ट्राइंगल है ABC, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है हाइपोटेन्यूज, AB क्या है परपेंडिकुलर और BC क्या है बेस, इजंट इट? क्या मैं लिख सकता हूँ, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, ठीक है। लिख लेते हैं ऐसे जरा हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया, तो बच्चों क्या आ गया, ये 1 इज इक्वल टू, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन, तो लिख सकता हूं इसे साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये एंगल हमारा थीटा बन रहा है, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी पढ़ी है तुमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1।
ये हमें मिल गई। इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करें, नाउ सेकेंड, ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय परपेंडिकुलर, x square upon p square upon p square plus p square upon p square, x square upon p square is 1 plus b square upon p square। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था? साइन। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल। क्या होता है? x। फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, पंडित बद्री प्रसाद ओवर हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन, और रिवर्स इसका आ जाता है कोसिकेंट सीकेंट कॉट। तो यहाँ आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद ओवर हर हर बोले सोना चांदी तोले, यहाँ कोसिकेंट सीकेंट और कॉट। हमारे पास आ रहा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट स्क्वायर थीटा। चेक कीजिए क्या यही सेकंड आइडेंटिटी है? पॉज द वीडियो। Second identity. Now for third identity, what you need to do? First में हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, यहाँ परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, नेक्स्ट में डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट? बेस। बेस से डिवाइड करो, you will get the third identity. I hope this is clear to you. Now in the next class, we will deal with trigonometry for angles which are greater than 90 degree। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल्स हमें दे दिए जाएं, जैसे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 250 डिग्री, 280 डिग्री, तो हम वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे? that we will do in the next class. तब तक look at it. Again I am reminding you, you need to look these videos 2 or 3 times to grasp the concept. ये तभी आएगा because all these things are very new to you. ठीक है, घबराना नहीं। जो भी डाउट्स हैं या तो रिस्पॉन्स ग्रुप में यू कैन क्लियर, अदरवाइज यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आई हैव गिवन यू माय नंबर। सो फॉर द टाइम बीइंग, स्टे इनसाइड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।